everyone, we are going to introduce our Thinkers Club today, or which will be happen under the iGEMS powered by Texacare. और आज जिसका पहला एपिसोड होगा which will be conducted by the Texacare Business Operation Manager. His name is Sir Shakil Safdar. So let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. The book that I have chosen for this session is basically Good to Great, written by Jim Collins. And it's basically not just about a book that is written by someone, it's actually about a research that is being conducted by the Jim Collins along with his team. So ये basically एक deep down research है that starts with a research question. And the research question says, why some companies make the leap and others don't? Basically, there are several companies that are operating in the market. लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि वाकई एक्सेल कर रही हैं, कुछ कंपनीज एक्सेल नहीं कर पाती. तो बेसिकली वो क्या फैक्टर्स हैं जो कि बेसिकली एक फैक्टर नहीं होता, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्विंग. सो वो फैक्टर्स कौन से हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. ऑब्वियसली बुक एक डिटेल्ड चीज़ है एंड वी कैन नॉट टच ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दैट बुक, बट गिविंग यू द ग्लिम्स that what actually is in that book and how things are divided and how things are relevant to us, that is basically something that is to be discussed here. There will be 3 sections of our presentation. First one, the book introduction. Second one, major insights of the book. And third one, how it is relevant to us. So इस 3 चीज़ों को लेके basically इस presentation को हम चलेंगे आगे. And the first thing, book introduction और major insights of the book, इसको हम पहले discuss करेंगे. आखिर में how things are relevant to us, इस चीज़ को हम लोग सबसे end में देखेंगे. There are 3 figures that are mentioned here. Scenario ये है कि over the period of 15 years, Jim Collins along with his team basically he investigated several companies, about 1435 companies जो कि study की उसने. And between or during his study basically he analyzed some of the factors that are the major contributing factors. उसकी basis पे इसने cut down किया companies को, further deep down जाके पहले 50 में, and then he dropped down to 11 companies. 11 companies were those companies जिन्होंने बाकी market में excel किया हुआ था. Now he had to obviously compare it with some kind of similar companies जो कि same niche की हो. So what he did, he picked 22 companies, like there were 11 couples जो उसने check down किए और उसके accordingly उसने अपने results drive किए. First half of the book is basically what a company should have, from leadership to your onboarded members. The next half of the book was based on the hedgehog concept and multiple other concepts जो कि parallel पे चल रहे होते हैं, how things are running, उस चीज़ को उसने explain किया. And the last section of the book was based on results के साथ drive हुए और किन basis पे उसने cut down किया था अपनी research को और किन basis पे उसने 11 companies को select किया था. So first of all, the major tagline of the research or the book is good is the enemy of great. Basically, this concept says if you are satisfied with your overall progress, अगर आपकी success है and आप उस पर satisfied हो, आप उस पर okay, whatever we are doing is good enough to sustain the market. So that is basically something that is basically an obstacle जो कि आपके रास्ते में, greatness के रास्ते में आपको जो है एक problem create करता है. If you are satisfied with your overall progress, so you cannot excel. Basically, if you are consistently improving, if you are working on Six Sigma कि आप consistently improve कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको greatness की तरफ लेके जा सकती है. So this was the first insight of this book. The second thing, there are multiple levels of leadership. And इसमें ये necessary नहीं है कि if you are touching the first level of leadership or 4th level of leadership, then you will be able to move to the 5th level of leadership. इस तरह से नहीं है. You can start with the 3rd level of leadership and you can even start with the 5th level of leadership. There are certain traits of this level 5 leadership that is the basic demand of your great companies. जितनी great companies observe की गई उसमें जो level leadership का observe किया गया, that was level 5 leadership. So ये वाली insight ये बताती है कि level 5 leadership जो है वो basically चंद चीज़ों की basis पे चल रही होती है. Gives credit to others for success, accepts responsibility for failures, listen to others and value their ideas, keeps learning, admit what they don't know, avoid chasing personal fame or the spotlight,
puts the organization's long-term success first. Basically, इसमें दो concept आते हैं. The two concepts that lies in the level 5 leadership are first looking outside the window, and the second one is looking into the mirror. अब scenario ये होता है कि let's suppose if you have failed, so either you are looking outside the window, किसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से फलां की वजह से हुआ, या you are looking into the mirror कि यार प्रॉब्लम बेसिकली मैं था जिसकी वजह से फेलियर है वो, इंस्टेड कि हम दूसरों को उसका जिम्मेदार करार दे रहे हो. सो दीज आर द टू कॉन्सेप्ट दैट मेनली इम्पैक्ट इन दिस लेवल 5 लीडरशिप. फर्स्ट हु देन व्हाट. दिस वाज अनदर इनसाइट ऑफ दिस बुक के बेसिकली स्टार्ट आपने कहाँ से करना है. आइदर इट शुड बी द स्ट्रेटजी फ्रॉम वेयर यू विल बी स्टार्टिंग और इट शुड बी द पीपल फ्रॉम वेयर यू आर स्टार्टिंग. So all those companies that move to the greatness level, that excel in the market, basically उधर क्या चीज़ ऑब्जर्व हुई कि they started with onboarding the right people. Basically कुछ कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्रेस नहीं किया हुआ था. CEO चेंज हुए, CEO के साथ उसकी अप्रोच चेंज हुई, और जब अप्रोच चेंज हुई ओवरऑल पैटर्न उन्होंने चेंज किया, डायनेमिक्स बदल गई, उसके बाद उन्होंने मार्केट में एक्सेल भी कर दिया. So get the right people on the bus, the wrong people off the bus, then decide where to drive. Basically, first you will have to pick the right people with you in your teams, and then you will move towards the strategy. So this is how the things go actually. If you are willing to be the great company, confront the brutal facts, face reality honestly, accept difficult truths, never lose faith. Basically, ऑप्टिमिज्म एक अच्छी चीज़ है कि यू आर ऑप्टिमिस्टिक इनफ कि वी आर गोइंग टू हिट दिस मच क्लाइंट्स, हम इतनी कन्वर्जन्स लाने लगे हैं, हम दिस मच ये चीज़ें हम लोग करने लगे हैं, लेकिन देयर इज समथिंग दैट इज़ रियलिटी, उसको भी आपने देखना है. ऑप्टिमिज्म शुड बी देयर बट रियलिस्टिक अप्रोच शुड ऑल्सो बी देयर, जो कि पैरेलल में चल रही होती है. एंड बीइंग मुस्लिम्स ऑब्वियसली वी शुड नॉट बी लूजिंग आवर होप्स, जो कि हमारी तो बीइंग मुस्लिम्स अलग साथ एक होप होती है, जो फेथ होता है हमारा वो अपनी जगह कायम रहता है. सो द लेसन इज बेसिकली कि यू शुड बी ऑप्टिमिस्टिक इनफ विद रियलिज्म, बट योर फेथ शुड बी इन योर प्लेस. इनसाइट नंबर 5, द हेजहॉग कॉन्सेप्ट. एक ये कॉन्सेप्ट दिया जिम कॉलिंस ने, जिसमें बेसिकली 3 चीज़ें हैं. 3 चीज़ें क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट कैन यू बिकम द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट. क्या बेस्ट कर सकते हो, क्या चीज़ बेस्ट हो सकती है आपकी तरफ से जिसमें आप वाकई एक्सेल कर सकते हो. सेकंड चीज़, व्हाट आर यू डीपली पैशनेट अबाउट, किस चीज़ का पैशन है. एंड द थर्ड थिंग, व्हाट ड्राइव्स योर इकोनॉमिक इंजन. बेसिकली इफ़ यू आर डूइंग समथिंग जो कि आपसे इस हद तक रेलिवेंट है कि यू आर पैशनेट अबाउट इट, आप उसका वाकई पैशन रखते हो, उसकी समझ रखते हो, उसको कर सकते हो, इतनी आपके अंदर कैपेबिलिटी है, सो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अर्न समथिंग फ्रॉम इट. लेट्स सपोज इफ़ योर इंटरेस्ट इज़ इन AI, आपकी फील्ड भी रेलिवेंट है, तो आप उसको अपना इकोनॉमिक मॉडल बना सकते हो, आप उससे बेसिकली अमाउंट जनरेट भी कर सकते हो अपने लिए. इसका लेसन बेसिकली क्या है जो जिम कॉलिंस ने दिया है? लेसन ये है कि डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग. सब कुछ नहीं करना, मैंने वो भी करना है, वो भी करना, फलां भी करना है, कुछ सब कुछ नहीं करना आपने. बेसिकली आपने एक चीज़ फोकस करनी है और उस चीज़ को ही आपने लेके चलना है. अब इसका नाम हेजहॉग कॉन्सेप्ट क्यों है? अगर लेट्स सपोज एक हेजहॉग के ऊपर एक फॉक्स अटैक करता है, सो देयर वुड बी मल्टीपल थिंग्स दैट वुड बी इन द माइंड ऑफ द फॉक्स कि मैंने किस तरह से इसको ग्रैब करना है, इस एनिमल को जाके. वैसे भी कहते हैं कि फॉक्स जो है बड़ा वो एक क्लेवर सा एनिमल है. हेजहॉग को सिर्फ एक ही चीज़ आती है, और वो है कि उसने किसी भी एडवर्स सिचुएशन में अपने आप को रोल कर लेना है, और उसके जो स्पाइक्स होंगे वो उसके ऊपर आ जाएंगे. अब उसके बाद जितनी मर्जी स्ट्रेटजीज आप उसके ऊपर चलते रहेंगे उसको पकड़ने के लिए, यू कैन नॉट इवन टच इट, वो कर ही नहीं सकते आप उसको. सो बेसिकली हेजहॉग इज़ वेरी क्लियर अबाउट हिज स्ट्रेटजी, और उसके तहत ही वो अपना कैश आउट करता है, सारा जो भी करता है. तो दैट इज़ समथिंग जो कि बीइंग कंपनी हमें भी देखना है कि हमारी कितनी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन कोर चीज़ उसमें क्या है उसको लेके हम लोगों ने चलना होता है. इनसाइट नंबर 6, कल्चर ऑफ डिसिप्लिन. बेसिकली इट ऑपरेट्स इन 3 डायमेंशंस. सबसे पहली चीज़, डिसिप्लिन्ड पीपल, disciplined thinking and disciplined actions. When these 3 things combine, तो उसके बाद फिर ये होता है कि आपको लोगों के पीछे भागना नहीं पड़ता. You would be controlling the system, actually you won't be controlling people. So system को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है, लोगों को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट नहीं है. So इसका जो मेजर लेसन है बेसिकली यही है कि अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन होते हो तो माइक्रो मैनेजमेंट आपकी बेसिकली नहीं हो रही होती. इनसाइट नंबर 7, टेक्नोलॉजी एक्सेलरेटर्स.
अच्छा, मल्टीपल CEOs हैव दिस मिसकंसेप्शन इन द माइंड के टेक्नोलॉजी आ गई तो पागल ही हो गए कि पता नहीं क्या हो गया. Akmal knows it very well. So technology alone is not the basically factor that changes everything. Basically technology is just an accelerator जो कि आपके प्रोसेस को improve कर सकती है, जो कि आपके प्रोसेस को accelerate कर सकती है. It should not be and cannot be even the sole factor that will boost you from ground to upper level. वो चीज़ नहीं हुआ करती. So technology का use important है, लेकिन टेक्नोलॉजी को ये मिसकंसेप्शन दिमाग में रखना कि ये एक सोल चीज़ है जो कि आपको ग्रेटनेस की तरफ लेके जाएगी, दैट इज़ नॉट द केस बेसिकली. सो स्ट्रेटजी कम्स बिफोर द टेक्नोलॉजी. स्ट्रेटजी आपकी मजबूत होनी चाहिए. स्ट्रेटजी से पहले आपके पास लोग मजबूत होने चाहिए, उसके बाद आपकी टेक्नोलॉजी फिर उस लेवल पे वर्क करती है. इनसाइट नंबर 8, द फ्लाईव्हील इफेक्ट. बेसिकली अगर हम एंशेंट फ्लाईव्हील्स की तरफ जाते हैं, पुराने ज़माने की जब मशीनरी मैनुअली हैंडल होती थी, सो किसी मशीनरी को चलाने के लिए एक फ्लाईव्हील अगर आप उसको ज़ोर लगा रहे हो, पहला राउंड जो है बड़ा ज़ोर पकड़ेगा, दूसरा राउंड जो होगा उसके बाद थोड़ा और ज़ोर, फिर तीसरा, ऐसा आपको ज़ोर कम लगेगा और फ्लाईव्हील घूमना शुरू कर देगा. सो व्हेन यू आर एट स्टार्टअप पोजीशन, द फर्स्ट पुश विल बी वेरी टफ वन. उसमें आपका ज़ोर ठीक ठाक लगेगा, जो कि भी हम सब ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, इसको आगे डिस्कस भी करेंगे. सो फ्लाईव्हील का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि आपने पहला पुश बहुत स्ट्रांगली देना है, उसके बाद जब वंस योर फ्लाईव्हील इज वर्किंग प्रॉपरली, सो एफर्ट्स विल बी लेस एंड द प्रोडक्टिव विल बी मोर. ठीक है, तो अगर आपका फ्लाईव्हील इसी कॉन्सेप्ट पे चलता रहता है कि आप एक डायमेंशन की तरफ प्रॉपरली मूव कर रहे हो, चल रहे हो, तो दैट विल ऑब्वियसली बी प्रोग्रेसिव वन. इसका ऑपोजिट एक फैक्टर आता है डूम्स लूप. इफ़ यू आर कंसिस्टेंटली चेंजिंग योर डायरेक्शंस, डूम लूप जो फ्लाईव्हील चलाया हमने, बीच में रोक दिया उसको, फिर दूसरा चला दिया, तीसरा रोका, फिर हम लोग एफर्ट ही करते रहेंगे. जितनी बार डायरेक्शन आप बदलोगे उसकी, उतनी बार आपकी एफर्ट लगती रहेगी, लेकिन प्रोग्रेस आपकी नहीं होगी. सो द डूम लूप इज बेसिकली अबाउट कंस्टेंटली चेंजिंग योर डायरेक्शन, फॉलोइंग ट्रेंड्स, बार बार CEOs चेंज कर देना, लॉन्च रैंडम इनिशिएटिव्स, और इवन बार बार टीम्स चेंज कर देना. वो चीज़ें आपको कंसिस्टेंटली प्रॉब्लम की तरफ लेके जाती रहेंगी. एंड स्टेइंग कमिटेड टू ए लॉन्ग टर्म विजन इज बेसिकली द लेसन जो कि इसने ड्राइव किया है ऑथर ने. व्हाट आर द की लेसन्स बेसिकली जो कि ऑथर इस पे कह रहा है. ग्रेट लीडरशिप स्टार्ट्स विद ह्यूमिलिटी, फेस रियलिटी ऑनेस्टली, बिल्ड डिसिप्लिन्ड टीम्स, सक्सेस कम्स थ्रू कंसिस्टेंट एफर्ट्स, hire the right people before making plans, focus on what you are at best, and use technology wisely. अच्छा, अब ये तो चीज़ थी जो कि बेसिकली ऑथर ने कही है. If we apply it in our system, so first of all जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है इसमें, इस बुक से, इस प्रेजेंटेशन के थ्रू, वो ये है कि if we are okay with our progress, if we are okay with our level जिस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, या if we are satisfied with the overall success जो हमें मिली है, we cannot move ahead. अगर हम लोग उससे ऊपर सोचेंगे, अगर हम लोग कंसिस्टेंटली इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे, तो ऑब्वियसली वो चीज़ हमारे रिजल्ट्स में इम्पैक्ट भी लाएगी और ओवरऑल कंपनी को ग्रेटनेस की तरफ लेके जा सकती है. द सेकेंड थिंग, लेवल 5 लीडरशिप. आई डोंट नो कि हम में से कौन किस लेवल की लीडरशिप के ऊपर है, लेकिन दीज आर द ट्रेट्स अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं, जिसमें हमारे अपनी ज़ात पीछे हो, कंपनी हमसे आगे हो, इवन हमारी टीम्स हमसे आगे हो. अगर हम फेल होते हैं तो ये ना हो कि यार फलाने कर दिया था, फलाने कर दिया, फलाने कर दिया था, उस वजह से हो गया. नहीं, इफ़ यू आर एट लीडरशिप पोजीशन, तो वो फेलियर एक्सेप्ट करना पड़ता है आपको. ये होता है वाकई, फेलियर आपको लेना पड़ता है, क्योंकि इन दी एंड मैनेजमेंट के सामने बेसिकली आपका लीडर ही होता है जो कि फिर वो करता है. अगर वो जाके ये कहेगा ना कि यार मेरा वो टीममेट था, वो ऐसा था, फलां ऐसा था, फलां ऐसा था, ऐसा चीज़ नहीं चलती. तो वहाँ पे आपको फिर अपना एक्सेप्ट करना होता है. और जहाँ तक सक्सेस की बात है, बेसिकली आपको अपनी टीम को मोटिवेट करने का तरीका ये होता है कि अगर आपको कोई सक्सेस मिली है, तो आप एटलीस्ट टीम को क्रेडिट दो कि यार फलां ने इतनी एफर्ट डाली थी, तो हम लोग इस लेवल को अचीव कर सके. लेट्स सपोज बूट कैंप है, उसमें किसी एक बंदे को नॉमिनेट कर देना कि यार वो फलां का आइडिया था, फलां की वजह से हो गया था, तो इसलिए वो सक्सेसफुल हो गया. नहीं, ऑब्वियसली क्रेडिट सबको जा रहा होता है. ये चीज़ फिर आपको मोटिवेट भी करती है आगे. सो लेवल 5 लीडरशिप इज़ बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर बेसिकली जो कि ग्रेटनेस की तरफ लेके जाता है आपकी कंपनी को. जो ये वाला फैक्टर था बेसिकली, ये वाली इंसाइट थी, फर्स्ट हु देन व्हाट. अपनी टीम्स में ऑब्जर्व करना है कि हु इज़ कंट्रीब्यूटर एंड हु इज़ नॉट. बेसिकली
ठीक है, फ्रेंडशिप्स होती हैं सबकी, हम सबकी फ्रेंडशिप्स हैं, लेकिन वंस यू आर ऑन द फ्लोर सो देयर आर प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स। उसमें इफ़ यू आर सपोर्टिंग एनीवन इस तरह से कि खैर अगर नहीं परफॉर्म करता भी खैर दोस्त है, चलाते रहते हैं, इन द एंड प्रेशर आपके अपने ऊपर पड़ जाना है। और ये जिम्मेदारी सभी की होती है कि धक्का लगा के चीज़ें नहीं चलती। ऑब्वियसली हर बंदा अपनी जगह कर रहा होता है और तभी चीज़ आगे चलती है, अदरवाइज हम में से कोई भी ऐसा नहीं कि वो हर डोमेन के अंदर जाके सब चीज़ों को इकट्ठा लेके चल रहे, नहीं हुआ करता। सो कीपिंग राइट पीपल इन द टीम, ऑफ बोर्डिंग दोज पीपल जो कि आपको रेलिवेंट नहीं लग रहे, और तब आगे चलना इज़ इम्पॉर्टेंट। जो ये इंसाइट है कन्फ्रंट द ब्रूटल फैक्ट्स, अभी शायद हमारे ब्रूटल फैक्ट्स चल रहे हैं, लाइक अभी बहुत सारी टकरें मारने के बाद भी रिजल्ट्स अक्सर बात नहीं निकल रहे थे, मल्टीपल रीजंस में। तो उन रीजंस को एक्सेप्ट भी करना है, और रीजंस को एक्सेप्ट करके सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करना बल्कि उनसे लर्न भी करना है। वंस यू लर्न तब आगे मूव कर सकता है बंदा। इफ़ यू डोंट लर्न तो बेसिकली फिर आगे नहीं जा सकता। लेट्स सपोज एक चीज़ या एक प्रैक्टिस जो आप करते रहोगे कंसिस्टेंटली, अगर वो वही करते रहोगे तो रिजल्ट्स भी हमेशा सेम ही निकलेंगे, रिजल्ट्स डिफरेंट नहीं निकलेंगे। सो इफ़ यू आर चेंजिंग योर स्ट्रेटजी तब रिजल्ट्स भी डिफरेंट निकलते हैं। सो अपने फैक्ट्स को ऑनेस्टली देखने के एक्चुअली चल क्या रहा है, और अल्लाह से एक अच्छी उम्मीद ऑब्वियसली रखनी है आपने। एफर्ट हमारा काम है, रिजल्ट्स अल्लाह की तरफ से हैं। तो ये एक इंसाइट हमें इससे मिलती है। जहाँ तक है जो कॉन्सेप्ट की बात है, ऑब्वियसली हमें अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज नहीं करनी चाहिए। हमारी डायरेक्शन एक होनी चाहिए कि किस प्रोडक्ट के ऊपर मेजर फोकस हमारा होना चाहिए, जो कि हमारे लिए कैश काउ का दर्जा रखती होगी। डूम्स व्हील की जहाँ तक बात हुई थी, सॉरी मेरे ख्याल से पीछे कल्चर ऑफ डिसिप्लिन, हम सब कोशिश करें कि अपनी ज़ात के अंदर इन तीनों लेवल्स के ऊपर डिसिप्लिन का कल्चर लेकर आएँ, ताकि एटलीस्ट हमें से किसी को भी दूसरे के पीछे भागना ना पड़ रहा हो किसी भी टास्क के लिए। अगर हम लोग ये चीज़ अपने अपने अंदर रखते हैं, अपने ज़ात के अंदर, अपनी डोमेन्स के अंदर, अपनी टीम्स के अंदर, सो एटलीस्ट यू विल ओनली बी सेइंग कि यार ये टास्क मुझे एंड तक चाहिए और एंड तक आपको टास्क मिल जाएगा। आपको फिर दोबारा कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जब आप बार बार किसी टास्क का किसी को कहते हो इस वजह से कि अगला वो चीज़ नहीं सुन रहा, अगला भी इरिटेट होता है और आप भी इरिटेट होते हो। सो कोशिश ये करनी है कि इस लेवल को हम लोग किसी ना किसी तरीके से, ऑब्वियसली एक चीज़ एक प्रोसेस है जो कि स्टेप बाई स्टेप आती है, तो किसी ना किसी जगह पे हम लोग इसको अपनी ज़ात के अंदर लेके आने की कोशिश करें। टेक्नोलॉजी एक्सीलरेटर्स अभी रिसेंटली एआई की इंटीग्रेशन काफ़ी हद तक जो है वो उसके ऊपर बात चल भी रही है और मार्केट में हम ऑब्जर्व कर भी रहे हैं इसको। सो इंशाल्लाह वील बी ट्राइंग और लेवल बेस्ट के विद इन आवर प्रोसेसेस हम लोग ऑटोमेशन को लेकर आए, ताकि जो चीज़ मैनुअली चल रही है उसको हम लोग एटलीस्ट थोड़ा स्पीड वे में लेके जा सकें आगे। द फ्लाई व्हील इफेक्ट, इस पर खासा जोर हम सबका लगा हुआ है, एफर्ट मार रहे हैं सारे। और पहला पुश ऑब्वियसली बहुत स्ट्रॉन्ग है जो कि अभी हम सबको फील हो रहा है किसी न किसी जगह पे, लेकिन बिलीव में लेकिन कि इंशाल्लाह ताला वंस अगर सही डायरेक्शन में ये पहला वाला पुश हम लोग दे पाते हैं, उसके बाद इतनी एफर्ट्स नहीं लगेंगी। लेट्स सपोज EHR को ले लें, हमारी डिफरेंट पार्ट्स को ले लें, अगर उसके ऊपर एक बार सही तरीके से जोर लग गया तो उसके बाद चीज़ें अपने आप चलते रहना है और हमें उस लेवल की एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डूम्स लूप ऑब्वियसली अवॉइड करना है। आज एक डायरेक्शन, कल दूसरी डायरेक्शन, परसों तीसरी डायरेक्शन, इस चीज़ को हम लोगों ने अवॉइड करना है। जो एक डायरेक्शन हम लोग लेके चलेंगे उस डायरेक्शन पर हम लोग को चलना इंपॉर्टेंट है। So this is all about today's session regarding Good to Great. If you have any questions, any doubts, you can post it in the comment section. Thank you so very much.